age group क्या है, just so I know who I'm talking to. How old are you guys, and what are you guys currently doing before I begin the session? Okay, ma'am, am I audible? Yes, yes, I can hear you. It's Malaika Hassan and my age group is 21. I'm pursuing psychology from the Department of National University of Medical Sciences. Okay, amazing. तो मुझे लगता है यहाँ पर तकरीबन सारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप में होंगे. Is that correct? Or is there Yeah, somebody younger as well present? I'm 17 to 25. Ma'am, I am 16. Okay, so 16 is the youngest. Okay, good. We have young blood as well. चलें ठीक है. So before we start this particular session, I was told that there's supposed to be an assignment here as well, and we're going to be doing the assignments as we proceed during the presentation so that we can make it more interactive, and so I can also understand कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है. So basically we're going to be talking about Pakistan's current climate and challenges. पाकिस्तान की अभी क्या सूरत हाल है, पॉलिटिकल क्या सूरत हाल है, इकोनॉमिकली क्या सूरत हाल है, and obviously on from a legal standpoint as well, where does the country stand? So before we move on, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों को एक बस गुजारिश ये है कि आप लोग किसी पेन या पेपर पे या चैट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं. चैट बॉक्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा. लिख सकते हैं वो चैलेंजेस जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं. मैं तो खैर आपको बता ही दूंगी, बट बिफोर वी प्रोसीड आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन ऑन आइदर अ पीस ऑफ पेपर और ऑन द चैट बॉक्स के what are the three challenges or the biggest challenges that you think Pakistan is facing as of now. So take 2-3 minutes, write it in the chat box, and here I'll call on you guys to explain why you think that is and what I think the biggest challenges are. Does that sound good? Does everybody understand? Are we all on the same page? So can you all just write a few, and if you can think of a lot of challenges, which is very difficult क्योंकि बहुत challenges हैं हमारे, which is the cold hard truth of the matter. आप बस ये मुझे ये बता दें कि आपको कौन से सबसे बड़े challenges लगते हैं. हो सकता है क्या your challenges might be different than the challenges I think Pakistan is facing. So use the chat box to tell me what those challenges are, and then we can move on. You have about 2-3 minutes. You can take this time to write in the chat box. So I've seen some really brilliant answers in the chat box. I've seen lack of education, I've seen illiteracy, I've seen water scarcity, unemployment, inflation, and discrimination against minorities. All of these are very big challenges that Pakistan is facing. So good job in highlighting those challenges. मगर एक चीज जो आप देखेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी, और ये मैं आपको रियलाइजेशन अभी भी देना चाहती हूँ कि हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, they are all very much interlinked and very much interconnected from one another. And by the end of this presentation, the purpose of this presentation is going to be कि आपका जो role है as the youth, because Pakistan is one of the youngest countries in the world. उसकी जो youth की population है, youth की जो percentage है, वो सबसे ज्यादा है compared to any other country in the world. तो उस चीज को किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये पावर ऑफ द पीपल जो है इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, जो अवाम की पावर होती है, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड एंड आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स अर्लियर एज वेल, जो बहुत मायूस हो गए हैं आफ्टर द पास्ट 2 years with regards to the inflation, with regards to the elections, with regards to the country as a whole. And I want to make sure कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो लोग अपना जो एक पार्ट प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिविज्म में है, चाहे वो अवेयरनेस में है, वो साइकोलॉजी के अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहते हैं, हाउ कैन दे डू दैट
एंड उनको कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स को रीच आउट करना चाहिए ताकि जो आप अपना पार्ट एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं वो आप किस तरह कर सकते हैं. So very good on highlighting the particular answers. I'm going to go and check again in the chat box. Freedom of speech, very important. We'll be talking a lot about freedom of speech in certain articles today. So I hope you guys are in for a ride in terms of the legal perspectives as well. Let's move on. ओके सो करंटली एज ऑफ नाउ जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे आपकी जितनी भी आपने जो चैट बॉक्सेस में अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे, हमें इतना तो पता है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं दे आर नॉट अनहर्ड ऑफ. ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो हमने पहले नहीं सुना था. फॉर इंस्टेंस वी नो पाकिस्तान इज फेसिंग economic strife because of the devaluation of the rupee, which means that the rupee's worth has fallen, which as a result has resulted in increased inflation. इसका मतलब ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. बट the problem that exists in Pakistan is कि आपकी तनख्वाहें, आपकी salaries उधर की उधर हैं, but you are unable to have that same purchasing power that you once did. And not only that, but पाकिस्तान का जो अब सबसे बड़ा economic problem है वो ये है कि आपका जो rich और poor का, यानी कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तबके का जो divide आ गया वो बहुत ज्यादा आ गया. यानी कि आपकी जो middle class है वो आपकी खत्म हो रही है. विच कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमें क्रिटिक सुनने को मिल रहा है, जो हमने लोगों से बात की है, इकोनॉमिस्ट से बात की है, जितनी भी हमारी रिसर्च है इस पे, वो ये कहती है कि अब क्योंकि टाइम्स ऐसे आ चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हर जगह पर हो रही है. सो आई एम सॉरी द एग्जाम्स हैपनिंग एट द बैक. इफ आई कैन जस्ट हैव a few minutes, 2-3 minutes, if that's okay. Sure, ma'am, take your time. All right, so I was talking about how basically there are a couple of economic challenges that Pakistan is currently facing, especially in light of the inflation that is happening. It's टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं. और वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का अभी नहीं आई ना, नॉर आर दे न्यू. दे एक्चुअली हैव बीन इन आवर सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जैसे मैं पहले बात कर रही थी बिफोर आई हैड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, वो ये बात थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. मगर पाकिस्तान एशिया का सबसे इट इज द बिगेस्ट कंट्री दैट हैज एक्चुअली हैड द हाईएस्ट percentage of inflation in the past 2-3 years. उसकी वजह से बेसिकली ये हुआ है कि जैसे मैंने पहले बताया, जो रिच और पुअर की जो डिवाइड है वो ज्यादा हो चुकी है, और आपकी जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन अब बिल्कुल सफर करिए. इट आइदर हैज टू मूव टू द अपर क्लास और इट आइदर हैज टू मूव टू द लोअर क्लास. जो क्लास का डिविजन है बेसिकली वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. नाउ let's talk about the difficult
political sphere and climate of Pakistan, and I'm going to be linking all of these issues together in one big example. तो सबको पता है कि मुल्क के क्या हालात हैं. Without mentioning any parties concerned, it has been extremely difficult time constitutionally for Pakistan, considering कि आपकी constitution जो है वो एक बार नहीं 2-3 बार violate हो चुकी है, and that has given people a sense of dismay and disappointment. इसके अलावा जी हमारी जो इलेक्शंस हैं, एक तो 2-3 बार डिले हुई हैं, और उसके बाद जब इलेक्शंस हुई हैं तो काफ़ी लोग उनसे मायूस इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से उनको होनी चाहिए थी. जाहिर सी बात है, जब हमें ये पता चलता है कि वोट को इज्जत दो, और जब हम वोट की बात करते हैं तो अवाम का वो हक है, अवाम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जब वो राइट उनको नहीं मिलता या वो डिलेड तरीके से मिलता है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स. तो जो एक एक तरह से कह लें आप मायूसी है, एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है, एक तरह से जो नाराजगी है लोगों में, वो अभी पाई जाती है इस वजह से क्योंकि जो इकोनॉमी भी है आपकी, महंगाई हो चुकी है. और अगर हम अभी लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोगों का मैंडेट है, लोगों की जो एक आवाज़ है, उसको शायद प्रॉपर तरीके से ना वो सुनी गई है, ना उसे इज्जत दी गई है. पॉलिटिकल रीजंस उसके ये हो सकते हैं. इसके अलावा देयर आर कपल ऑफ जजमेंट्स, देयर आर कपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की और पॉलिटिकल स्ट्राइफ की, वहां पर आ जाते हैं हम सोशल प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर इलिटरेसी, जेंडर इनक्वालिटी, आपकी लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूल्स की बात आ जाती है. तो जब आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर हर दूसरे दिन फजूल किस्म की बातें हो रही हैं और उन चीज़ों पर बातें नहीं हो रही जिस जिस पर बात असल में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको आईएमएफ के फंड्स के, आईएमएफ के जो पे आउट्स हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अबाइड बाय देम एज वेल. जब ये दोनों सिचुएशंस आपके सामने होंगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, वो इम्पैक्ट सही नहीं होगा. और ये जो हम देख रहे हैं अभी करंट गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में और उससे भी पिछली गवर्नमेंट में, इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड आल्सो इन द ओपिनियन ऑफ मेनी डिफरेंट जूरिस्ट्स, ऑफ मेनी डिफरेंट स्कॉलर्स, एजुकेशन एक वाहिद चीज़ है जो कभी भी किसी गवर्नमेंट ने सही तरीके से फोकस नहीं की. एंड मैं ये इसलिए इस पर इतना ज़्यादा जोर देना चाहूँगी क्योंकि एजुकेशन ही वो एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाती है. एंड वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के, वो इलिटरेसी में नज़र आते हैं. अभी हम आगे जाके भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के अंदर जितनी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन द राइज. मगर उसके साथ साथ यहाँ पर भी जानना ज़रूरी है कि 26.2 मिलियन बच्चे हैं आपके पाकिस्तान में जो अभी स्कूल से बाहर हैं. मतलब वो स्कूल से बाहर है, दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन, ना उनके पास स्कूल जाने का इख्तियार है, और स्कूल्स अगर पैसे मांगेंगे तो वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसे दे. तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इल्म से महरूम हो जाते हैं, उनके पास वो एक्सेस नहीं होता स्कूल्स को. और ये जो एक बहुत बड़ा मसला चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी हमें पता चला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जब गुजरी थी तो आई हैड द चांस टू टॉक टू द पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट. पर हमने उनसे सिंपल ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं वो मजीद आते जा रहे हैं, एंड दे आर एडिंग ऑन टू द पॉपुलेशन, जिसके अंदर से ये जो 26.2 मिलियन का फिगर आपको नजर आ रहा है, ये इंक्रीज कर जाएगा फ्यूचर में, बजाय इसके कि ये कम हो. तो इसको हम किस तरह केटर कर सकते हैं कि जितने भी ये बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, इनकी क्या वजूहात हैं, इनको किस तरीके से हम लेके जा सकते हैं स्कूल, और इनको किस तरह हम डाल सकते हैं ताकि आपका जो मुआशरा है